ओके सर। ठीक है, अभी होगा भी नहीं, अभी होगा भी नहीं। ओके सर। Okay, so let's revise macroscopic and microscopic approaches. Okay, so in the last lecture we have discussed macroscopic, microscopic approach, and then concept of continuum, then energy and heat and work transfer. Okay, so let's revise one by one. So in the last lecture we have also discussed that any substance is made with a numbers of particles, and these particles are known as molecules. So if this is some substance, so these are the molecule of that substance. So this can be a solid, liquid and gas. So substance can be solid, liquid and gas. So if we take a small volume in this substance and see it under the microscope, then we can see the arrangement of the molecule inside the substance. So if it is solid, the molecules are closely spaced. If it is liquid, the distance between the two molecules is more than the solid. And if it is gas, this distance is or more. So the intermolecular distance, which is distance between two molecules, is highest in case of gas, then liquid, and least for the solid. And if you talk about the number of particles, so in a taken portion or in a taken volume, which is a small, very small volume, the number of molecules is highest for the solid, then liquid, and least for the gas. So properties, so we can say that number of molecules is highest in the solid, then liquid, and least for the gas. But this is only a representation. In actual, the molecules in the liquid and gas are also very high. So it is only a representation. It is less than the solid, and in gas it is less than the liquid. So if we take our tiny volume, which is equal to a droplet of water, तो अगर हम droplet of water के बराबर वॉल्यूम लेंगे, जो कितना होगा 1 mm क्यूब, तो अगर इन केस ऑफ लिक्विड अगर वाटर होगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे 3 इंटू 10⁻19, और अगर ऑक्सीजन होगा तो होगी 3 इंटू 10⁻16। तो जो गैस है, इन गैसियस फेज वी हैव 1000 टाइम less molecules than the liquid, but still this quantity is very high, which is 3 into 10⁻16. So large number of molecules in a tiny volume, which is 1 mm cube. You can imagine the volume 1 mm cube. Okay, it is almost equal to a one drop of water. So इतना ज्यादा number of molecules होते हैं, and the behavior of the जो भी substance होता है उसका behavior किस पे depend करता है? Molecule के बिहेवियर पे। तो जैसे अगर हम इफ यू टॉक अबाउट डेंसिटी, देन डेंसिटी इज जनरली हाईएस्ट फॉर द सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ओके, व्हाई? बिकॉज द more number of molecules are present in the solid phase, and then number of molecule decrease in the liquid phase, and the number of molecule in the gaseous phase are least. Okay, so if you are talking about any property, the property is depend upon the behavior of these molecules. So we have taken a gas in the small portion, and there are number of molecules. We are representing only few molecules. Okay, so if it zoom it, then the molecules are moving here and there in a zigzag manner. They are doing the random motion, and they are doing so because they have the kinetic energy. So due to the kinetic energy, they are moving here and there, and they are colliding with each other and exchanging their momentum. Apart from that, they are also collide with the wall of the system. So if a gas exists in a container, then when the molecules collide with the wall, they exert force on the wall, due to which pressure exerted by the gas. So the pressure exerted by the gas is due to the force exerted by the molecules. यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये जो इनसाइड कोई किसी भी कंटेनर में कोई गैस रखी है, अगर वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं इधर उधर, और जब वो वॉल से टकराते हैं तो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ड्यू टू विच क्या होता है? प्रेशर आता है। ठीक है, जितना एरिया पे जितना फोर्स पर यूनिट एरिया कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? प्रेशर मिलेगा। सिमिलरली अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कहती है जो टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल है किसके?
kinetic energy के. If the kinetic energy is high, then the temperature is also high. If the kinetic energy is decreased, then the temperature will also decrease. So if the kinetic energy increase, the velocity of molecules will increase and they will exert more force on the cylinder wall or container. So if we have a gas in a piston cylinder arrangement and we transfer heat, so when we transfer heat, the temperature of the gas will increase, and due to which kinetic energy of the molecules will increase. And by increasing the kinetic energy, the pressure is also increased, and our piston will move upward because the pressure inside the cylinder increase. Okay, so यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस हमारे पास दो अप्रोच हैं. तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एक बिहेवियर समझ रहे थे कि कैसे मॉलिक्यूल्स बिहेव करते हैं सिस्टम के अंदर. ओके, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं. तो हमारे पास दो अप्रोचेस हैं. कोई भी हम थर्मोडायनामिक एनालिसिस करना चाहते हैं, वी हैव टू अप्रोचेस. फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक एंड सेकंड वन इज मैक्रोस्कोपिक. सो इफ वी हैव अ गैस इन अ कंटेनर, सो देयर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड इन द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम क्या करते हैं, वी हैव अ वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल. तो हमको हम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी पता है, उनका मास पता है. वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, वी कैन कैलकुलेट द momentum transfer with the help of molecular gas theory. Okay, तो जो भी गैस थ्योरी के assumptions होते हैं उनको निकाल के हमको हमारे पास, if there are n number of molecules, then we have n number of equation. तो उन equations को सारी को solve करते हैं. Then after that we will take the average with the help of statistical techniques. ठीक है, स्टैटिस्टिक पढ़ी है आपने? स्टैटिक्स पढ़ी है, जिसमें मास, जिसमें हम एवरेज लेते थे, मीन लेते थे, मॉड लेते थे. तो ये सब टेक्निक लगा के हम जितनी भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए जितनी इक्वेशंस आई है उनको सॉल्व करते हैं, एंड देन वी हैव द वैल्यू ऑफ प्रेशर. इन द अदर सिस्टम हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक गेज लगाते हैं, और इस गेज की मदद से हमको सिर्फ इतने वाले पोर्शन के लिए क्या मिल गया है, प्रेशर मिल गया है. सिर्फ इतने वाले पोर्शन के लिए प्रेशर मिल गया है. तो उससे हमने क्या कहा, जितना यहाँ पर प्रेशर है वही पूरे सिस्टम का प्रेशर होगा. तो ये वाली अप्रोच क्या कहलाती है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या कर रहे थे हम, वी आर कंसिडरिंग ईच मॉलिक्यूल. हम सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को देख रहे थे और उन मॉलिक्यूल्स को देख के हम ये पता कर रहे थे कि प्रेशर कितना है. बट इन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वी जस्ट टेक अ प्रेशर गेज एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज वी मेजर द प्रेशर. तो जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है वो मॉलिक्यूलर लेवल से उसको कोई लेना देना नहीं होता. तो ये क्या करती है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसीडर्ड विदाउट टेकिंग into account the event occurring at molecular level. तो molecular level से कोई लेना देना नहीं है उसको. और जो ये मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है इसको और क्या बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स. And I have already discussed this. Microscopic approach do not require a knowledge of behavior of individual particle. तो जब भी हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच की बात करते हैं, हमको पार्टिकल कैसा बिहेव कर रहा है, क्या वेलोसिटी है, कि क्या मोमेंटम ट्रांसफर किया, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, we have nothing to do it. So it is easy and direct way to solve the engineering problem. And the next is microscopic. Microscopic में क्या है, जो हमारा सिस्टम है हमने माना है कि नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, और जो बिहेवियर ऑफ द सिस्टम का बिहेवियर है वो इन मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है. तो हम जो एक एक पार्टिकल जैसा जैसा बिहेव कर रहा है, हमको हर किसी पार्टिकल्स को ट्रेस करना है. ठीक है, और इन पार्टिकल्स के पास डिफरेंट वेलोसिटीज होती है, डिफरेंट एनर्जीज होती है, और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रह रही है. इफ एक पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड कोलिजन हुआ, उसने अपनी जो एनर्जी थी वो दूसरे को ट्रांसफर कर दी, उसकी वेलोसिटी बदल गई, डायरेक्शन बदल गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल गई. तो ये टाइम के साथ साथ चेंज होते रह रही है जो भी एनर्जी है. तो ये इस टाइप के जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है इसको डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब इसमें n नंबर ऑफ जो इक्वेशंस बन जा रही हैं और उनका फिर एवरेज करने के लिए हमको डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगानी पड़ रही है. तो इस वाली जो मेथड, जो अप्रोच है, इसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स भी बोलते हैं. ओके, अब देखते हैं डिफरेंस. तो पहला डिफरेंस है, देखिए ये क्या कर रहा है, दिस अप्रोच to the thermodynamics is concerned with gross और overall behavior. ठीक है, और इसमें क्या है, हम
हमारी जो कंसर्न है वो बिहेवियर ऑफ ईच मॉलिक्यूल है। तो देखिए नॉमेनक्लेचर से ही क्लियर है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक, तो ओवरऑल बिहेवियर दिखेगा। और ये क्या है, माइक्रो मतलब छोटा, बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखेगा। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या है, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच वी रिक्वायर सिंपल फॉर्मूला। हमको क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, कोई अगर लगाना पड़ा तो बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वी हैव द लार्ज नंबर ऑफ इक्वेशन, और उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमको बहुत सारे फॉर्मूलेज और स्टैटिस्टिकल मेथड्स की जरूरत पड़ती है। ओके, सो third one is so macroscopic is known as classical thermodynamics and microscopic known as statistical thermodynamics. So in macroscopic, in order to define system, we require only few property like pressure, temperature, volume. But in microscopic we require the large number of property. ठीक है, मास क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, देन वी कैन डिफाइन अवर सिस्टम। सो इन दिस अप्रोच our in this approach जो analysis है that is less time consuming and in microscopic more time consuming। और microscopic approach क्या है, सिंपल है और ये कॉम्प्लेक्स है। अब आता है नेक्स्ट, ये जो 7 और 8 है ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच जनरली वहां यूज होती है जहां डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है गैस की। ठीक है, यानी कि जो प्रेशर है गैस का वो अबव द वैक्यूम प्रेशर है, अबव द वैक्यूम प्रेशर है। और ये जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जनरली वहां यूज होती है जहां लो डेंसिटी या वैक्यूम प्रेशर होता है। जब भी हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम वैक्यूम प्रेशर में होगा तो जो हम अप्रोच लगाएंगे वो माइक्रोस्कोपिक लगाएंगे। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा क्यों करते हैं। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस ऑल्सो कि ये जो होता है ये मॉलिक्यूलर थ्योरी के एजम्पशन पे बेस्ड है पूरी की पूरी। तो जो भी हम एजम्पशंस लगा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर थ्योरी के लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो हम एजम्पशन लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम का। अभी ये पॉइंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम क्या होता है ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था बट क्लियर नहीं हुआ था, अभी फिर से डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है? यस सर, यस सर। अब देखिए, जैसे हमने बात करी लो डेंसिटी की, है ना, जैसे हम ये वाला एग्जांपल देख रहे थे जिसमें क्या हो रहा था कि ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर मूव कर रहे थे। हमने एक छोटा सा वॉल्यूम लिया जिसमें कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए इसमें मॉलिक्यूल्स सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स होते, अभी तो हम यहाँ पर पूरा मेजर कर रहे हैं, अगर इसमें 2 ही मॉलिक्यूल्स होते इसमें पूरे, यानी कि वैक्यूम में, वैक्यूम कैसे क्रिएट होता है? जब हम क्या करते हैं, किसी मान लीजिए कोई कंटेनर है उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करना है, तो जो उसके अंदर गैस है उसको बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। बट कुछ ना कुछ गैस तो उसके अंदर रह ही जाएगी। आप 100 पूरा एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर तक नहीं पहुंच सकते। ओके, ये प्रेशर सिस्टम पढ़ा है नहीं पढ़ा है? प्रेशर का गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर पढ़ा है कभी फ्लूइड में? फ्लूइड में चला है अभी ये? नो सर। नो सर। अच्छा, अभी पढ़ेंगे आपकी वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए जैसे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इससे जब बिलो चल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। तो जब भी हम वैक्यूम में होते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। अब खुद सोचिए अगर इसमें सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल होते और आप मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर नाप रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कभी किस दोनों मॉलिक्यूल यहाँ पर हो तो जो प्रेशर आएगा वो तो 0 आ जाएगा, और कभी दोनों मॉलिक्यूल जब यहाँ पर हैं इस वाले पोर्शन में है तब कुछ प्रेशर की रीडिंग दिखाएगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, हमारी जो रीडिंग, जो हमारा मेजरमेंट होता है या जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गलत हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा कम है। और जब हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से नापते हैं, जब हम यहाँ पर नंबर ऑफ, क्योंकि मॉलिक्यूल तो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे, अगर मान लीजिए पूरे सिस्टम में ही 4-5 मॉलिक्यूल हैं तो कभी क्या पता ऐसा हो सकता है कि 4-5 मॉलिक्यूल यहाँ पर हो, अभी तो ये मॉलिक्यूल से पूरा फिल है तो अभी नाप रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से आ जा रहा है प्रेशर। बट जब ये वैक्यूम में होगा सिर्फ ये 1 या 2 या 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ऐसे केस में हम अगर इससे प्रेशर नापेंगे तो कभी 0 आएगा, कभी कुछ रीडिंग आ जाएगी, कभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब सिस्टम वैक्यूम में होता है तो हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच नहीं लगा सकते, तब हम क्या लगाते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। दिस इज क्लियर? ये क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, अब दूसरी चीज आती है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम भी क्राइटेरिया है कि आप मैक्रोस्कोपिक अप्रोच कब लगा सकते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच आप तभी लगा सकते हैं जब कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम वैलिड हो।
कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटिनम कब वैलिड होगा, जब दो मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस जो ये पूरा सिस्टम की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा कम होगी, 100 टाइम्स कम होगी। ठीक है, जो ये डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस जो ये सिस्टम की डायामीटर है, इससे कितने टाइम्स कम होगी बताइए? 100 times. 100 times. तो in the last class we have also discussed, to explain the concept of quantum we use the Knudsen number. So if the value of Knudsen number is less than 0.01, then we can say concept of quantum is applicable. और concept of quantum क्या है? नहीं, Knudsen number क्या है? Knudsen number है जो हमारा क्या है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ ऑफ द सिस्टम. सो इफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज लैम्डा एंड दिस सिस्टम डायमीटर इज एल, तो एक जो इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है और उसको डिवाइड करेंगे जब इस पूरी लेंथ से, अगर वो 0.01 से कम आएगी तो हम कहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम वैलिड है. यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखिए सेम चीज है. क्या वैक्यूम में क्या हो रहा है? वैक्यूम में यहाँ पर 3-4 मॉलिक्यूल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो 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 ये मीन फ्री जो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होगी, अगर मान लीजिए इसमें सिर्फ दो ही पार्टिकल है, एक ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल, अब इसकी डायमेंशन मेजर कीजिए और इसको अपॉन कीजिए इतना, तो ये इतना आएगा? नहीं आएगा. क्लियर? ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है और तीसरा यहां पर, सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल्स हैं, तो जो ये इनके बीच की डिस्टेंस है ये लैम्डा, और इसको डिवाइड करेंगे किससे? डी से, तो ये वैल्यू नहीं मिल पाने की. ओके, सो इन दैट केस वी कैन से our concept of quantum is not valid for this system. So we cannot apply the macroscopic approach. So we have to move towards the microscopic approach to analysis this system. Clear? Clear sir. 0.01 के इक्वल होगा तब भी अप्लाई नहीं कर सकते ना हम? नहीं बेटा, उससे कम ही होना चाहिए. ओके, उससे कम ही, बट अगर उसके क्लोज, उसके आसपास भी पहुंच रहा है तो भी क्या है, चिंता की बात है. ठीक है, सो फॉर द सेफ साइड उसके नीचे ही, उससे कम ही होना चाहिए. ओके, ऐसी कंडीशन मिलेगी नहीं आपको कोई. ठीक है, बट उससे नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि एक टिनी वॉल्यूम में 1 mm क्यूब में, जो 1 mm क्यूब था उसमें कितने मॉलिक्यूल्स थे, याद है किसी को? 3 into 10 power 16 for water, sorry, for oxygen, for gas, or particularly oxygen, which is measured at a particular normal pressure and temperature. यानी कि pressure, atmospheric pressure and temperature is 20 degrees centigrade. Okay, but when we increase the temperature, the number of molecules will be less in a certain volume because the gas will be expand. Okay, तो यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़े बेटा, कोई डाउट है? नो सर. नो सर. ओके, so after that we have discussed the energy and its form. So what is energy? Energy is something which has the ability to create change. Okay, sir. Then we have discussed the different form of energy. Then we are discussing the heat transfer. So heat transfer is defined as the transfer of energy by the virtue of temperature difference. So whenever the temperature difference exists, heat will be transferred. So suppose we have a system, and if energy exists, it can be exist in different form. But when the energy transfer or cross the system boundary, it can be a heat transfer or work transfer. तो जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी उसको तो हम बोलेंगे एनर्जी है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ठीक है, उसके डिफरेंट नेम हो सकते हैं, काइनेटिक हो सकती है, पोटेंशियल हो सकती है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है, या फिर माइक्रो लेवल जो एसोसिएटेड है वो हो सकती है. बट अगर एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री से बाहर जा रही है तो उसको किस फॉर्म में हो सकती है? वो बताइए, किस फॉर्म में हो सकती है वो?
if the energy is crossing the boundary of the system, सर हीट की फॉर्म में भी हो सकती है और वर्क की So work की form में भी हो सकती है और हीट की फॉर्म में, आइदर हीट की फॉर्म में आइदर वर्क की फॉर्म में। तो जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में जा सकती है बाहर, और या फिर वर्क की फॉर्म में जा सकती है। ओके, सो जो ये कॉन्सेप्ट है हीट ट्रांसफर और ये वर्क ट्रांसफर, ये बाउंड्री फिनोमिना है। हीट और वर्क दोनों तभी अपीयर होते हैं जब वो बाउंड्री पे हों। ओके, एक बार वो हीट ट्रांसफर किया, एक बार वो सिस्टम के अंदर आ गया, देन इट इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी। और एक बार अगर वो सिस्टम से बाहर जा रहा है, जिस टाइम तब अंदर था तब तो एनर्जी था, जब बाउंड्री पे है तब वो हीट है, और एक बार सिस्टम से बाहर चले गया देन इट अगेन बिकम एनर्जी। ओके, so heat and work only appear at the boundary of the system. Okay, so we have a system, suppose we have a system, if system transfer heat to the surrounding, then heat transfer is negative, and if surrounding transfer heat to the system, then the heat transfer is positive. देखिए बेटा, ये चीज हीट ट्रांसफर और ये वर्क ट्रांसफर का जो साइन कन्वेंशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल अभी इस यूनिट में बनेंगे वो सारे के सारे इस पे डिपेंड करते हैं। अगर जहां पर आपने प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर दिया, आपका आंसर गलत हो जाएगा और उस पर 0 मार्क्स मिलेंगे। कोई उसके वो भी नहीं होगा कि नहीं तो कोई बात नहीं, छोटा सा साइन ही तो गलत लगाया है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। अगर हीट ट्रांसफर किसके, अगर हीट रिसीव की है किसने, सिस्टम ने, तो पॉजिटिव, और अगर हीट ट्रांसफर की है किसने, सिस्टम ने, तो नेगेटिव। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, टेक हीट इक्वलेंट टू मनी। ठीक है, तो अपने आप को सिस्टम समझिए, अपने आप को क्या समझिए, सिस्टम, और मनी को समझिए हीट। तो अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो यू फील पॉजिटिव, और अगर आपको पैसा देना पड़ रहा है तो यू फील नेगेटिव। सो सेम इन द सेम वे, if heat transfer to the system, then system feel positive, and when the heat transfer by the system, then system feel negative. Okay, so if heat is transferring to the system, the sign convention is we take positive, and when heat transfer by the system, we take negative. Okay, that is clear? Yes. सर जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, हाँ, तो सर अगर जो उसमें से जैसे हीट निकलती है, बाहर आती है ना सिस्टम से, तो सर उस टाइम उसे एनर्जी बोलेंगे, हीट ही बोलेंगे? जब उसके हाथ कांपते हैं, मतलब हाथ जब कांपते हैं तो सर हीट आती है वहां से। बेटा आप वो एक तरीके से देखिए थर्मल एनर्जी है। ठीक है, अब आप पहले तो उसमें कंसीडर आप वो कीजिए कि आपने वो माना है क्या, सिस्टम सर वुड है सर जो जल रहा है ना, तो वो तो एक एनर्जी तो आ रही है बेटा, है ना। अब लेमैन भाषा में उसको कुछ भी बोल सकते हैं, बट इन थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि लेमैन भाषा में तो बहुत चीजों को बहुत कुछ बोलते हैं, है ना। जैसे आप स्कूटी को बोलते हो कि बिना गियर की गाड़ी है ना, सभी यही बोलते हैं बिना गियर की गाड़ी है, मगर बिना गियर की गाड़ी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती ना, ऑटोमेटिक गियर होता है उसके अंदर। ठीक है, बिना क्लच की गाड़ी है ना, नहीं सॉरी, बिना क्लच की गाड़ी है, ऑटोमेटिक क्लच होता है उसके अंदर, है ना, क्लियर। बिना इसमें गियर ही नहीं है स्कूटी में। तो ऐसे लेमैन भाषा में बहुत कुछ बोलते हैं, बट एज ए इंजीनियर, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपको सही चीज पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर? करण ने पूछा था ये। हाँ जी। तो एक तरीके से वो एनर्जी है, जब एनर्जी बाहर आ रही है तो बाहर का टेम्परेचर कम है, उस एनर्जी के कारण क्या हो रहा है, जो आपका सराउंडिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जा रहा है। ओके, बट जो हीट टर्म डिफाइन कहाँ से हुई है, सब्जेक्ट तो थर्मोडायनेमिक्स है ना, तो हमने तो डिफाइन करी हीट टर्म, और हीट को हम कह रहे हैं कि वो सिर्फ बाउंड्री पे डिफाइन होगी। अब उसको बाहर की दुनिया में कुछ भी बोलते रहे, ओके, उनने अच्छे से नहीं समझा उस चीज को, क्लियर। क्योंकि हीट तो थर्मोडायनेमिक्स से लिखी है ना वर्ड, तो और डेफिनेशन हीट की डेफिनेशन आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, और अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर जो है सिर्फ बाउंड्री फिनोमेना है। ओके, अभी इसका भी कारण है, मैं उसका भी बताऊंगा आपको। ठीक है, कि ऐसा क्यों है, सिर्फ बाउंड्री फिनोमेना क्यों है, क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम की, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी आगे, तो ये चीज आपको अभी और क्लियर हो जाएगी। क्लियर कि ये प्रॉपर्टी क्यों नहीं है और ये पॉइंट फंक्शन क्यों नहीं है, ये पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होता है, जब हम आगे मूव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हीट और वर्क ट्रांसफर क्यों प्रॉपर्टी नहीं है, और क्यों इनको बोलने हैं कि सिर्फ ये बाउंड्री पे सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कि आप उनको बाहर डिफाइन ही नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स मूव। After that, we have discussed the work transfer. So work generally denoted by force into displacement. Okay,
So if work done by the system, it is positive, and work done on the system is negative. If the system producing work W, then it is positive, and if surrounding doing work on the system, then it is negative. ये clear? ठीक है. जैसे आप इसको एक तरीके से समझ लीजिए कि जैसे आप किसी को डांट रहे, आप सिस्टम है और आप किसी को डांट रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन को, किसी को भी डांट रहे हैं, तो जब आप किसी को डांटते हैं तो आपको ठीक है, आप पॉजिटिव फील करते हो, बट जब आपको मम्मी पापा डांटेंगे तो आप क्या करोगे? नेगेटिव फील करोगे. ठीक है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं. सिर्फ ये याद रखने के लिए ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है कि इसको मनी ले लो और इसको डांटना लिख लो. ठीक है, तो सिर्फ ये किसके लिए है कि न्यूमेरिकल्स में गलती ना हो. ओके, दैट इज क्लियर. याद रहेगा? यस सर. अच्छा, एक अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा. अक्षत सिंह, आर यू देयर? अक्षत सिंह. यस सर. ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव और नेगेटिव? वर्क डन बाय द सिस्टम. सर नेगेटिव. वर्क को किससे रिलेट करने को बोला था मैंने आपसे? डांटने से. सॉरी सर पॉजिटिव. यस सर, डांटने से. सर पॉजिटिव. ठीक है. एंड हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम? सर हीट ट्रांसफर सर पॉजिटिव. सर मनी से रिलेट कर रहा था. ठीक. ओके, सो लेट्स मूव towards the next topic. The next topic is zeroth law of thermodynamics. Okay, so anybody know what is zeroth law of thermodynamics? आप लोगों ने पढ़ा है कभी? किसी ने पढ़ा है जीरोथ लॉ? सर वो योगा एनर्जी आंसर वी क्रिएटेड नोर वी डिस्ट्रॉयड वाला. नहीं बेटा, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. ओके, सो ये नहीं पता. ओके, मैं बताता हूँ. The zeroth law of thermodynamics state that if two bodies are in thermal equilibrium with a third body, okay, so if two bodies are in thermal equilibrium with third body, then they are also in thermal equilibrium with each other. ठीक है, ये स्टेटमेंट है किसका? जीरोथ लॉ का. जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट क्या है? अगर दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी क्या होंगी? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एक्सप्लेन मी what is thermal equilibrium. What is thermal equilibrium and what is thermodynamic equilibrium? Sir, temperature remains constant everywhere is known as thermal equilibrium. Thermal equilibrium. और what is thermodynamic equilibrium? सर जब सिस्टम जो है मतलब सर वो इक्विलिब्रियम में, सर जब टेम्परेचर वाला वो कांस्टेंट रहता है तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा. सर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम सर जब सिस्टम पूरे इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, पूरा सिस्टम. कौन सी सर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब सर टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकली बेस पे वो सब कांस्टेंट हो. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सब कांस्टेंट. ये पेपर दिया आप लोगों ने, ये आपने तैयारी की थी. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा? थ्री कंडीशंस हैं: थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. इफ a system is in thermal equilibrium, mechanical equilibrium and chemical equilibrium, then we can say this system is in thermodynamic equilibrium. And for a thermal equilibrium, there is no unbalanced force, there is no temperature difference within the system or with the surrounding. So then we can say system is in thermal equilibrium. तो if two bodies are in thermal equilibrium, अगर मैं एक बॉडी लूं, मान लो इस तरीके से, so we have two bodies like that, and one has temperature of 100 degrees centigrade and second has the temperature of 20 degrees centigrade. So we know the heat will be transferred from higher temperature body to the lower temperature body, and this heat transfer will be continue until the temperature of when the temperature of both the bodies become equal. So मान लीजिए अगर दोनों का 50-50 हो गया तो we can say thermal equilibrium achieve हो गया. It means there is no heat transfer. तो if two bodies are in thermal equilibrium, it means इस बॉडी से इस बॉडी को कोई हीट नहीं जा रही है, नहीं ये बॉडी इस बॉडी को कोई हीट ट्रांसफर कर रही है. Similarly, if A and C are in thermal equilibrium, it means body A is
not transferring any heat or neither body C transferring any heat to A. Okay, clear? Okay, so अगर जैसे आप दो बॉडी हैं, आप उनको आपस में टच करेंगे तो जिसमें ज्यादा हीट होगी वो क्या करेगी, दूसरी बॉडी को हीट ट्रांसफर करेगी। कब तक करेगी? जब तक दोनों क्या हो जाए, बैलेंस ना हो जाए। और जब हीट ट्रांसफर आपस में, जो हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है वो बंद ना हो जाए, तब तक आप नहीं बोल सकते कि ये दोनों बॉडीज किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। दैट इज क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया बेटा? यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? ओके, तो अब स्टेटमेंट की बात करते हैं। ये क्या बोल रहा है, टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी। तो थर्ड बॉडी कौन सी है? ये है थर्ड बॉडी। तो दो बॉडी है, ये पहली बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है। सो टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी। सो दिस इज बॉडी 1 which is thermal equilibrium with A, and this is C. Body 2 is also in thermal equilibrium with A. तो B थर्मल इक्विलिब्रियम में A के साथ और C है थर्मल इक्विलिब्रियम में A के साथ। देन अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो ये दो बॉडी होंगी B और C, ये भी आपस में किसमें होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? फिर से एक्सप्लेन करूं एक बार? यस सर। एक और बात करते हैं। अब कर रहा हूं। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया आपको क्या है? अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उनके बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तभी हम क्या कह पाएंगे कि दो बॉडी किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यहां तक क्लियर? If there is no heat transfer between two bodies, then we can say these two bodies are in thermal equilibrium. So thermodynamics, zeroth law of thermodynamics का वो क्या बोल रहा है, if two bodies are in thermal equilibrium with third body, तो हमारे पास दो बॉडीज हैं, कौन कौन सी, B और C। वो जो तीसरी बॉडी है उसके साथ किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो B किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, A के साथ, और C किसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A के साथ। तो अगर इस तरह की कंडीशन है कि अगर दो बॉडीज ए के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों आपस में भी किसमें होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। इसको और अच्छे से समझते हैं। सो इफ बॉडी बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी ए एंड बॉडी सी ऑल्सो इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी ए। सो बी किसके साथ है, ए के साथ, और ए किसके साथ है, सी के साथ। तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट है इन दोनों का, और इनके बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। देन वी कैन से बॉडी बी एंड ए आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली बॉडी सी और ए के बीच में भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, देन वी कैन से these two bodies are in thermal equilibrium. So according to the zeroth law of thermodynamics, if body B and C are in thermal equilibrium with body A, then body B and body C are also in thermal equilibrium. Okay, like that. If body B is in thermal equilibrium with body A and body C is in thermal equilibrium with body A, then these B and C are also in thermal equilibrium. So this is the zeroth law of thermodynamics. Clear? यहां तक आप समझ में आया कुछ? यस सर। ओके, फिर से समझिए, ठीक है। और ये मान के चलिए कि इसके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 99% है, ठीक है। तो जीरोथ लॉ क्या कह रहा है, इफ टू बॉडी, और ये जो स्टेटमेंट है ये एज इट इज आप ऐसे ही लिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। इफ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, तो हमारे पास दो बॉडी थी एंड दीज टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, देन दीज टू बॉडी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, सो जैसे हमने देखा कि यहाँ पर दोनों बॉडी ए बॉडी बी से कनेक्टेड है और बॉडी ए सी के साथ भी कनेक्टेड है। सो इफ देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन बी एंड ए, then we can say body A and B are in thermal equilibrium. Similarly, there is no heat transfer between body C and A, then we can also say body A and C are in
थर्मल इक्विलिब्रियम। सो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, जब भी कोई दो बॉडी कांटेक्ट में होती है, अगर उनके बीच में कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब दोनों क्या है, सेम जो भी उनका प्रॉपर्टीज है वो इस तरीके से है कि दोनों को पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, body B and C will also in thermal equilibrium with each other even they are not in physical contact। तो B और C में तो कोई फिजिकल कांटेक्ट है नहीं, आपस में एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। यहाँ बॉडी B और A में तो फिजिकल कांटेक्ट है और वो यहाँ पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो हम कह रहे हैं दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। इसी तरीके से बॉडी A और C भी आपस में फिजिकल कांटेक्ट में है, इन दोनों के बीच में भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, देन वी कैन से body A and C are in thermal equilibrium, but bodies B and body C are not in physical contact. Then also they are in thermal equilibrium. So this is the zeroth law of thermodynamics. Clear हो गया यहाँ तक? Okay. Yes, तो कितना इजी लॉ है देखो। B थर्मल इक्विलिब्रियम में A के साथ, C थर्मल इक्विलिब्रियम में है A के साथ, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है बी और सी जो है किसमें होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कि y इजिकल टू एक्स है और z इजिकल टू एक्स है, तो y और z आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बताइए कुछ, है ना? तो ऐसी ऑब्वियस चीज को किसने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना दिया? अभी मैं आपको बता रहा था इंट्रोडक्शन में कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है और बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है, और उसका जो लॉ है वो ऐसा है? इससे क्या होगा, ये तो मतलब ऑब्वियस ही चीज है ना कि ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, सी ए के साथ है, तो बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो नई चीज क्या है इसमें? हम भैया अगर y इजिकल टू एक्स है और z इजिकल टू एक्स है, तो y और z आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? तो इसमें ऐसा क्या था कि इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना दिया? सर लेकिन बी और सी जो है फिजिकल कांटेक्ट में नहीं थे ना, इसी वजह से शायद से लो कर दिया। ओके आयुष, गुड। और कुछ? पहली चीज ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूजन हो सकता है बहुत ज्यादा आपको, ध्यान से सुनिएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ रिलेशन। थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ रिलेशन। ओके, ये नहीं बोल रहा है कि बॉडी बी ए के बराबर, ऐसा नहीं बोला, वो एक रिलेशन है, ठीक है। और यहां पर सी और ए के बीच में भी एक रिलेशन है और बी और सी के बीच में भी एक रिलेशन है। तो मैथमेटिक्स में तो होता कि अगर b इक्वल्स टू ए या y इजिकल टू एक्स और z इजिकल टू एक्स देन y इजिकल टू एक्स, ऐसा मैथमेटिक्स में तो होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये मैथमेटिक्स होती तो होता है ऐसा कि y x के बराबर है, z x के बराबर है, तो y और z आपस में बराबर होंगे, ये मैथमेटिक्स में होता। ओके, यहां तक समझ में आया? बट यहां पर ये रिलेशन है, आपने कैसे लिख दिया b इजिकल टू b थर्मल इक्विलिब्रियम होगा c के साथ, ये तो रिलेशन है। अब दो बच्चे चाहिए, दो वॉलंटियर, कौन कौन आएंगे बताइए? करण माइक खोल लीजिए बेटा, एक जना और कोई खोल लीजिए माइक। आकाश आप खोल लीजिए, आकाश गोयल। यस सर, यस सर। अब मान लीजिए मैं कौन हूं, ए, मैं ए हूं, आयुष बी है, करण सी है। क्लियर? सबके समझ में आ रहा है इतना? लिख लिए, टाइप कर लीजिए, ठीक है। मैं ए हूं, अब करण ने जो है आकाश से 100 रुपए उधार लिए हैं, करण ने आकाश से 100 रुपए उधार लिए हैं, ठीक है। अब करण को मुझको कोई पैसे नहीं देने और मैंने भी करण को कोई पैसे नहीं देने, तो हम दोनों का एक रिलेशन हो गया कि ये कोई मनी ट्रांसफर नहीं है हमारा, हम सब बैलेंस है आपस में। करण ओके? और सेम आकाश के साथ है मेरा कि आकाश को मैंने कोई पैसे नहीं देने, आकाश ने भी मेरे को कोई पैसे नहीं देने। तो इससे ये कहां से निकल गया था कि आकाश ने करण को कोई पैसे नहीं देने? नहीं आया समझ में? सर ये बात समझ में आई, बस उधार लिए हैं इसने, हैं? 100 रुपए उधार लिए हैं, बस इसने मुझसे इतनी बात समझ में आई मुझे सर। कर रहे हो सर आप? ओके, फिर से समझिए, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं था। अगर यहां पर कुछ इक्वल टू का साइन होता, b इक्वल टू ए होता और c इक्वल टू ए होता, तो हम कहते हैं कि b इक्वल्स टू c है। बट यहां पर एक रिलेशन है। रिलेशन कैसा है कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी आपस में,
ओके, सिमिलरली मैं हीट को किससे, मनी से रिप्लेस कर रहा हूं, और मैंने जैसे 2 बच्चे लिए, करण और आकाश, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आकाश से मुझे कोई पैसा नहीं लेना और ना ही मैंने आकाश को ही देना है, इसी तरीके से ना मैंने करण को देना है ना ही करण ने मुझको देना है। तो हम दोनों एक तरीके से ऐसे मनी के इक्विलिब्रियम में है, ना कोई पैसा देना है ना कोई लेना है, बट आकाश को करण से लेने थे पहले से ही, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन कहां से आ गया कि इन दोनों को भी आपस में कोई पैसे नहीं लेने हैं? इसका मतलब ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये हम अच्छे से समझे ही नहीं। ठीक है, अभी इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं आपके, यहां तक ये एग्जांपल समझ में आ गया ना आपके? यस सर। इट इज नॉट सो ऑब्वियस ना कि अगर बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और सी ए के साथ है तो बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये इतना ऑब्वियस चीज तो नहीं है जितना आपने जैसे इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ अगर बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और सी ए के साथ है तो बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इतनी ऑब्वियस चीज नहीं है। ठीक है, फिर से समझिए, जब जीरोथ लॉ आया था थर्मोडायनेमिक्स का, बिफोर दैट टेम्परेचर मेजरमेंट जो होता था पॉसिबल नहीं था। उससे पहले अगर मैं आपसे पूछता कि इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, देन यू कैन से इट इज कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड, इट इज हॉट, इट इज वेरी हॉट। तो सिर्फ एक आपके पास रेफरेंस होता था कि नहीं ये चीज गर्म है, ये चीज ठंडी है। अगर सोचिए अगर आपके पास टेम्परेचर नहीं होता तो आप कैसे डिफाइन करते किसी चीज को? क्लियर? सो बिफोर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर हम क्या करते थे, सिर्फ इतना ही बोल पाते थे कि जो हम टेम्परेचर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी थी कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, या तो कितना गर्म है कितना, बट उस जो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस कह रहे हैं उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे पाते थे कि 100 डिग्री है, 200 डिग्री है, 300 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके की चीज होती थी। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जिसने पॉसिबल किया टेम्परेचर के मेजरमेंट को, ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ जीरोथ लॉ। आपने फिजिक्स पढ़ी, आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा, सेकंड लॉ पढ़ा होगा, थर्ड लॉ पढ़ा होगा, अदर किसी भी सब्जेक्ट में आपने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ देखा होगा, बट ये पहला सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स जिसमें क्या है, जीरोथ लॉ। क्योंकि नंबरिंग हमेशा स्टार्ट होती है 1 2 3। तो ये क्या है, ये जो जीरोथ लॉ है, ये जब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ आ चुका था उसके भी 50 साल बाद आया है। और ये क्या था, सबसे ज्यादा बेसिक रूल था कि भैया टेम्परेचर तो सबसे पहले डिफाइन करना था अपने सब्जेक्ट में, थर्मोडायनेमिक्स में, और वो आपसे छूट गया। तो जिसने ढूंढा जब ये टेम्परेचर मेजरमेंट, तो सबने कहा कि ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दैट इज क्लियर। अब थर्मोडायनेमिक्स ने क्या किया, जब बॉडी बी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में थी, इसका मतलब कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो वो आपस में बराबर कर रही थी, और वो प्रॉपर्टी थी क्या आपकी, टेम्परेचर। It means if body B and A are in thermal equilibrium, it means the temperature of B is equal to temperature of A. And when body C is in thermal equilibrium with body A, then the temperature of C is equal to temperature of A. So now we can say the temperature of B is equal to temperature of A and temperature of C is equal to temperature of A. Now we can say the temperature of B is equal to temperature of C. So from there we can say temperature B equals to temperature of C. So if the temperature of two bodies are same, it means they are in thermal equilibrium. नहीं आया समझ में? आ गया। आगे सर। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स से जिसने क्या पॉसिबल किया, टेम्परेचर मेजरमेंट, और यही वो लॉ है जिसने हमको एक प्रॉपर्टी दी जिसको हम आज बोलते हैं टेम्परेचर। ओके, सो बिफोर द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं पता था। हम सिर्फ ये बोलते थे कि कुछ हॉट है, बहुत ज्यादा हॉट है, उससे भी ज्यादा हॉट है, कोल्ड है, कोल्डेस्ट है, ठीक है, इस तरह की चीजें चलती थी। बट हमारे पास कोई टेम्परेचर, कुछ एक ऐसी टर्म नहीं थी, कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी जो उस चीज को डिफाइन कर पाए। हमको ये तो पता था हीट ट्रांसफर हो रही है, इधर से इधर हो रही है, हीट ट्रांसफर इधर से इधर हो रही है, बट क्यों हो रही है, कौन सा वो पैरामीटर है जो इसको बराबर करे, जब जो बराबर हो जाएगा तो हीट ट्रांसफर बंद हो जाएगा। वो जो पॉसिबल हुआ वो किसके बाद हुआ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद। दैट इज क्लियर? क्लियर बेटा? सर क्वेश्चन था। यस सर। यस सर जो ये जीरोथ लॉ है, मतलब सर ये मैक्रोस्कोपिक पे या सर ये माइक्रोस्कोपिक पे? ये बेटा मैक्रोस्कोपिक पे, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पे। सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे मतलब एक वॉल होती है सर सर्दियों में, जैसे सर हम होते हैं सर, अगर जब हम मतलब वॉल को टच करते हैं सर, हमें वो ठंडी लगती है, तो सर उसके बीच में सर वो हीट ट्रांसफर होगी, तो सर वो मतलब जो हमारी बॉडी की सारी हीट है मतलब सर वो चली जाएगी कुछ, या कुछ तो बचेगी ना?
एक्चुअली क्या है, देखिए एक सिंपल क्वेश्चन होता है, ये आपकी क्लास 12th एग्जाम में भी आता था, ठीक है। यस सर। अगर कोई सेम रूम है ठंड में, तो एक लकड़ी की चेयर है, एक मेटल की चेयर है, ओके। तो अगर आप जब मेटल की चेयर को टच करते हो तो आपको ज्यादा ठंडी लगती है, बट जब आप एक लकड़ी की चेयर को टच करते हो तो आपको उतनी ठंडी नहीं लगती, बट दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर पे हैं। नहीं आया समझ में? ठीक है। तो बेटा वहां पे क्या है, वो जो मेटल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, ठीक है, उसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ज्यादा है, ओके। और जबकि जो जो वुड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर है। क्लियर? यस सर। बट दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर पे हैं, और दोनों किसमें है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। चाहे वो इवन दे आर नॉट इन कांटेक्ट, बट बोथ हैव द सेम टेम्परेचर रीडिंग, इट मींस दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सो इट इज अगेन कहां से लिया गया है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है सर, क्लियर। By the replacing of the third body with a thermometer, by the replacing the third body with thermometer, the zeroth law can be restated as two bodies are in thermal equilibrium if both have the same temperature reading, even they are not in contact. तो अगर कोई दो बॉडी है, फिर से समझिए, by replacing the third body with thermometer, the zeroth law can again restated as two bodies are in thermal equilibrium if both have the same temperature reading, even they are not in contact. तो जो ये वाला मैंने डायग्राम दिखाया था आपको, this, so this third body act as a thermometer. तो इस थर्मोमीटर ने क्या किया, पहले इसके साथ, इसमें जब इसके साथ कांटेक्ट में थी, then they take the reading of the temperature of body B and then it take the temperature reading of C. Okay, so if they are in thermal equilibrium, तो एक ही टेम्परेचर रीडिंग आएगी, और जब ये इसके साथ गया तो जितनी टेम्परेचर रीडिंग इसकी थी उतनी ही टेम्परेचर रीडिंग इसकी भी आई। तो यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी एंड टेम्परेचर ऑफ बॉडी सी आर इक्वल, इट मींस दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इवन दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। तो जैसे अभी आप रूम पे बैठे हैं तो रूम का टेम्परेचर मान लीजिए 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो भी आपके रूम में जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो इस कॉर्नर में रखी हुई है, चाहे वो दूसरे कॉर्नर में रखी हुई है, चाहे उनमें कांटेक्ट है कि नहीं है, उनके बीच में आपस में हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है। दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम बिकॉज ईच वन हैज द सेम टेम्परेचर रीडिंग। अगर आप उसी रूम में एक गर्म चाय का कप रख देंगे, देन दिस कप हैज हाई टेम्परेचर, देन हीट ट्रांसफर विल बी स्टार्ट फ्रॉम कप टू सराउंडिंग अदर थिंग। जितनी भी सराउंडिंग में जो भी अदर थिंग्स रखी हुई है उनमें हीट ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? क्लियर बेटा? अब एग्जाम में कितना लिखना है, देखिए एग्जाम में तो मैंने जितना आपको समझाया, एग्जाम में अगर आप ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे दैट इज सफिशिएंट, साथ में उसके अगर ये डायग्राम जितना ये लिखा हुआ है ये भी, और साथ में ये वाला पार्ट बनाएंगे या ये वाला पार्ट बनाएंगे, तो दैट इज सफिशिएंट। ठीक है? क्लियर? सर एक्सक्यूज मी सर। यस सर। करण? जी सर, मैं पूछ रहा था सर, आपने बताया तो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव क्वांटिटी है। यस, इंटेंसिव है। हाँ जी, तो सर यहाँ पे तो टेम्परेचर जो है सर दो बॉडी के बीच में डिवाइड हो रहा है सर, जैसे 100 डिग्री का तो एक और रख दी तो हमने बराबर हो गया इनका 50-50, तो सर ये तो एक्सटेंसिव हो गया। नो बेटा नो, देखिए इफ हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम देन इट्स टेम्परेचर विल डिक्रीज। If heat is transferred from the system, then its temperature will decrease. If you transfer heat to the system, its temperature will increase. आपने एक पैन में वाटर रखा है गैस पे, आप नीचे से गैस ऑन कर रहे हो, तो यानी कि आप हीट ट्रांसफर कर रहे हो, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, आप उसमें ठंडा पानी मिला दोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। बट आपने क्या कर दिया, जो दो अलग अलग टेम्परेचर के मास को आपने जोड़ दिया है ना, तो वो क्या हो रहा है, वहां से हीट ट्रांसफर आपस में बैलेंस कर रहा है, वहां से एक्सटेंसिव इंटेंसिव वहां पे नहीं करिए आप। ठीक है? अगर आप ऐसे सोचिए कि जैसे हाँ सर, दो सिस्टम हो गए ना सर, वो हाँ दो सिस्टम, तो दो सिस्टम में तो बेटा आप नहीं कह सकते ना कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव, वहां पे तो आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। जब एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, प्रोसेस हो रही है। ओके, तो जब प्रोसेस हो गई तो प्रॉपर्टीज तो चेंज होंगे, क्योंकि यूनिक प्रॉपर्टी तो रह ही नहीं सकती। यूनिक प्रॉपर्टी सिर्फ एक इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए एक ही होंगी। जब भी स्टेट चेंज होगी, एक स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट पे जाएगा तो प्रोसेस होगी, तो प्रॉपर्टीज की वैल्यू
चेंज होगी। तो जब आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ रहे हैं तो हीट ट्रांसफर हो रही है, यानी कि कुछ ना कुछ प्रोसेस हो चुकी है सिस्टम के अंदर। एक जो हाई टेम्परेचर पर होगा सिस्टम वो हीट ट्रांसफर करेगा, और जो लो टेम्परेचर पर होगा वो हीट को रिसीव करेगा। ओके, सो देयर इज अ प्रोसेस। तो एक सिस्टम के लिए वो हीट रिजेक्शन है, एक सिस्टम के लिए वो नेगेटिव हीट ट्रांसफर है, दूसरे सिस्टम के लिए पॉजिटिव हीट ट्रांसफर है। तो ऑब्वियसली बात है प्रॉपर्टी चेंज होंगी, क्योंकि वहां पर प्रोसेस हुई है। ओके, सो डोंट कंफ्यूज विथ इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, so let's move further. So so the zeroth law of thermodynamics given by R.H. Follower in 1931. So it is recognized more than half a century after the formulation of first and second law of thermodynamics. So that's why its name is zeroth law of thermodynamics. Clear? Next is measurement. One second. Yes. So I have already told you the zeroth law of thermodynamics provides the basis for measurement of temperature. So before the zeroth law of thermodynamics, temperature measurement is not possible. So after the zeroth law of thermodynamics, temperature measurement is possible. So to measure, how we measure temperature? तो हम measure temperature measure कैसे करेंगे? So क्या हो रहा है? So some properties varied with temperature, which are known as thermometric property. So if we are talking about some properties, कुछ properties ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं, जो क्या करती हैं, टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। एंड तो कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, टेम्परेचर के साथ वेरी करती हैं। तो इन ऑर्डर टू मेजर द टेम्परेचर वी मेजर दोज प्रॉपर्टी फर्स्ट, एंड व्हेन द टेम्परेचर चेंज the value of these properties are also changed, and with the help of these changes we can measure the temperature. Clear? जैसे एक एग्जांपल आपने देखा होगा, थर्मोमीटर देखा है सबने, जिससे बुखार नापते हैं डॉक्टर। एक डिजिटल आता है, एक आता है जिसमें मरकरी फिल होती है, ग्लास ट्यूब, देखा है? यस सर। यस सर। ओके, तो उसमें क्या होता है, जब वो हमारी बॉडी के साथ अटैच किया जाता है तो वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करता है, किसके साथ, हमारी बॉडी के साथ। तो जब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में, क्योंकि अगर वो हमारी बॉडी के सेम टेम्परेचर पे नहीं है, तो देन हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम आवर बॉडी टू दैट थर्मोमीटर। तो जब वो थर्मोमीटर में हीट जाती है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, उसका टेम्परेचर राइज होगा, एंड ड्यू टू विच द मरकरी इनसाइड द ग्लास ट्यूब विल एक्सपेंड, क्योंकि मरकरी क्या है, लिक्विड मेटल है, और ड्यू टू द टेम्परेचर उसमें क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। जब थर्मल एक्सपेंशन होता है तो उसकी लेंथ इंक्रीज करती है, तो विच इज कैलिब्रेटेड। तो जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है उसकी लेंथ इंक्रीज करती है, और वो कैलिब्रेटेड होता है, और इसकी जो हमारा थर्मोमीटर है उसमें डिफरेंट मार्किंग रहती है। तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ, जैसे जैसे उसकी लेंथ इंक्रीज करती है और वो उसके साथ जो टेम्परेचर का जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग वहां पर उसमें क्या हो गया, मार्किंग हो रही है थर्मोमीटर में। तो जैसे जैसे एक्सपेंड होता रहता है वैसे वैसे हमको टेम्परेचर शो होते रहता है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। इसी तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन मेजर द टेम्परेचर। लाइक वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर, लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, अल्कोहल और मर्करी इन ग्लास। सो दिस इज द एग्जांपल which we have discussed. Thermometer, okay, electric resistance thermometer, thermocouple, or radiation we have a pyranometer. Okay, so we all know the gas equation. What is gas equation? PV is equal to nRT. So for a given gas, this is constant and this is also constant. So if the volume is constant,
देन टेम्परेचर विल वेरी विद द टेम्परेचर किसके साथ वेरी होगा? टेम्परेचर विल बी वेरी विद प्रेशर. The constant volume gas thermometer, our thermometric property is pressure. तो जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होगी प्रेशर की वैल्यू चेंज होगी. क्लियर? तो हम क्या करें, वहां से हमको क्या मिल जाएगी? टेम्परेचर की रीडिंग मिल जाएगी. हमको पहले से कैलिब्रेट कर लेंगे कि इतने टेम्परेचर डिफरेंस के लिए अगर हम कर रहे हैं तो कितना प्रेशर चेंज होता है. तो जितना टोटल प्रेशर चेंज हुआ होगा उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? कितना टोटल टेम्परेचर चेंज हुआ होगा. इफ वी हैव कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, तो फिर अगेन हमारी गैस इक्वेशन क्या है? PV equals to nRT. Then R is constant. R is gas constant. So what we have? Constant pressure gas thermometer. तो प्रेशर तो पहले से कांस्टेंट है और ये पहले से कांस्टेंट है. तो जो हमारा वॉल्यूम है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के. तो यानी कि टेम्परेचर किसके साथ चेंज होगा? V के साथ. तो जो हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? वॉल्यूम होगी. एल्कोहल जो हमारा थर्मोमीटर है उसमें मैंने अभी आपको बताया कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है दैट इज लेंथ. थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है? लेंथ. इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक रजिस्टर होते हैं उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज आल्सो चेंज विद द टेम्परेचर. ओके, सो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो भी किसके साथ चेंज होती है? टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. ठीक है. इसी तरीके से जो थर्मोकपल होता है, आपने सीबेक इफेक्ट पढ़ा होगा, है ना? जब कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन डिफरेंट टेम्परेचर होते हैं तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है. एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ईएमएफ वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर. क्लियर? सो व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? अनुज, व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी? अनुज, आयुष, गोपाल, व्हाट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बेटा? तो मुझे भी समझ नहीं आया ये. क्या समझ में नहीं आया बेटा आपके? सर ये टेम्परेचर मेजरमेंट यहाँ तक समझ में आ गया था? इसके पीछे तो आ गया हैं? जीरो लो तक. क्या? लो तक. जीरो कहाँ तक? आ गया था सर. जीरो तक आ गया. यहाँ से नहीं आया. जो टेम्परेचर मेजर करना होता है, ठीक है, अब वो टेम्परेचर कैसे मेजर करें? ठीक है, टेम्परेचर मेजर ऐसे करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर के साथ वेरी होती हैं. ठीक है, जिनका हम पहले से मेजरमेंट करते आ रहे हैं. ठीक है, जिनका मेजरमेंट करना आसान है. जैसे वॉल्यूम का हम मेजरमेंट करते आ रहे हैं, प्रेशर का मेजरमेंट करते आ रहे हैं, लेंथ का मेजरमेंट हम आराम से कर सकते हैं. कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी वैल्यू भी चेंज होगी इन अ फिक्स पैटर्न. ठीक है, और वो बहुत ज्यादा वेरिएबल भी नहीं होगी, बिल्कुल एक फिक्स पैटर्न में चेंज करेंगी. ठीक है, तो जब वो प्रॉपर्टी चेंज होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर के साथ, तो हम क्या करते हैं? हम टेम्परेचर को डायरेक्ट ना नाप के हम क्या करते हैं? उन प्रॉपर्टीज को मेजर करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दोस प्रॉपर्टी वी डिफाइन प्रेशर. नहीं आया बेटा गोपाल समझ में अभी भी? यस सर आ गया. बताओ क्या होती है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी फिर? तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है. जैसे टेम्परेचर चेंज जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे की प्रॉपर्टी चेंज होती रहेगी. ओके, अच्छा, आप मेरे को आयुष एक बार जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दीजिए, क्या होता है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर जीरो लॉ होता है जैसे एक बॉडी के टेम्परेचर मतलब ए बॉडी टेम्परेचर और दो बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में है. तो दो बॉडी का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में कहाँ से? नहीं, अगर दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है फिर थर्ड बॉडी, ये दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो थर्ड बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी. मतलब तीनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में. यार मैं यार आयुष यार. ओके, चलिए कोई बात नहीं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. मैं इसकी पीपीटी इसमें अपलोड कर दूंगा. ठीक है, हैंड रिटन जो टाइप नोट्स हैं वो भी कर दूंगा. चलिए लेक्चर टाइम हो चुका है. क्लियर? ठीक है, और कोई डाउट बेटा किसी को? एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में तो कोई डाउट नहीं रहा क्लास? नो सर. ओके, सो we will revise this zeroth law of thermodynamics and the measurement of thermodynamics in our next lecture. Okay, so you can do the quiz now. Okay, thank you beta. Thank you sir.
अरे इसमें थर्मोमीट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर होगी ना थर्मोमीटर में। छोड़ दिया।